ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਬਾ ਅਦਬ ਬਾਸਤਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਖਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੌੜਤਾ ਦਾਈ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਇਹ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੱਸੇ ਕਰ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਦੌੜਤਾ ਦਾਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਰੋਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੋ ਆਪ ਕੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ। ਖੈਰ ਬਾਤ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਜੀਵਨ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਮਹਿਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਝੁਕਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ। ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਟੁਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਇੱਕ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਸਾਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, MSPC ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੀਫ ਲਾਈਫ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ 1613 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਹਨ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1615 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1617 ਈਸਵੀ ਦਾ।
फिर उन्होंने भरा बाबा अनी राय जी जिन्हों का जन्म 1618 ईस्वी का है, तो फिर उन्होंने भराता हैं बाबा अटल राय जी जिन्हों का जन्म 1619 ईस्वी का है। तो अज धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश गुरु के महल माता नानकी जी की कुख तो 1621 ईस्वी को होया। अज के दिन सतगुरां की कृपा सदका पूरी चल पैर है, क्योंकि बड़े इतिहासकारों ने इतिहास लिखा, मैं जिन्होंने कोट करके आप जी को सुना रहा, वो कन डॉक्टर तारण सिंह। डॉक्टर तारण सिंह होरां दी किताब है गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जीवन के संदेश। ये 2 वॉल्यूम ने, एक पहला लिखा गया 1900 कुछ ते उस तो बाद दूसरी किताब उन्होंने लिखी। खैर बात वो जिक्र करते कहते बचपन में ही धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी करतार नाल जुड़े हुए, सब नाल जुड़े हुए। क्योंकि मैं कई बार जिक्र करता हूँ जिन्हों के घर में जपजी का पाठ होंदा सच है, उन्होंने बच्चे भी जपजी साहब पढ़ते होंगे। जिन्हों के घर नितनेम बाणियां का जाप होंदा है सच है, उन्होंने बच्चे भी नितनेम बाणियां नाल जुड़े होंगे। तो यही गल सी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के घर के अंदर एक प्रवाह निता प्रति चलता सी। जिथे दूसरे सुपुत्र सन उत्थे सतगुरु की कृपा सदका धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी भी करतार की बाणी नाल जुड़े हुए सन। बड़े कुछ इतिहासकारों ने नाम पहला त्यागमल लिखिया, पर नहीं कहते कन शुरू तो ही धन गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जो नाम रखिया सी ते उदों तेग बहादुर रखिया सी। 10 दे 10 गुरु साहिबानां विचों सिर्फ ते सिर्फ धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का भी नाम तेग बहादुर फारसी का लिखाया गया, फारसी का, क्योंकि तेग का अर्थ होंदा फौलाद, फौलाद का जुहर भाव की फौलाद, ते बहादुरी का अर्थ होंदा उत्साही। फौलाद ते उत्साही दोवें गुण हैं सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे। जिथे सतगुरु जी त्याग की मूर्त हैं ते उत्थे धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी जो जंग लड़ते उदों तलवार उठा के सतगुरु जी तलवार के युगल भी विखाते कर। पर यह डॉक्टर तारण सिंह होरी लिखते हैं भी तेग बहादुर नाम पहला ही सीगा, बाद विच नहीं, पहले ही सतगुरां का नाम तेग बहादुर रखा गया सी। पर बड़े इतिहासकारों ने लिखा कि उन्हों का नाम त्यागमल सीगा, फिर उन्हों का नाम तेग बहादुर नहीं, क्योंकि ज़्यादा इतिहासकारों ने पढ़ा गंडा सिंह तेजा सिंह ते इधर डॉक्टर तारण सिंह होरां नूं ते उन्होंने नाम गुरु तेग बहादुर महाराज उन्होंने तेग बहादुर ही रखिया। गुरु बाद में लग्या जो सतगुरां की कृपा रखी। खैर कहते बचपन में ही करतार नाल जुड़े हुए कन, बचपन में ही मालक दे नाल जुड़े हुए, साहब नाल जुड़े हुए कन। 4-5 साल की उम्र गए तो कहते करतार की कृपा सदका समाधि विच नील रहिंदे हैं, समाधि विच नील रहिंदे गुरु तेग बहादुर महाराज। हुण वेखो 4-5 साल की उम्र ते 4-5 साल की उम्र दे विच ही समाधि विच नील लैना, करतार की बंदगी करनी, साहब नाल जुड़े होना, बड़ी वड्डी गल है ना जी। 3-4 साल के बच्चे को पता ही नहीं होंदा, वो बचपन दीयां खेडां विच खिडौणियां विच इन्ना खुबिया होंदा है कि उन्होंने अपने आपे का पता नहीं होंदा। ते उस अवस्था में गुरु तेग बहादुर महाराज जी करतार की बंदगी करते कर, मालक ना जुड़े हुए, साहब ना जुड़े हुए कर, बहुत थोड़ा सोंदे ते बहुत थोड़ा खांदे कर। ते कहते समाधि विच जदों लीन 3-3 4-4 घंटे रहिंदे ते मात नानकी सवाल करदे गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं कि यह हर वक्त समाधि विच लीन रहिंदा आप जी दा पुत्र की कारण है। ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी कहते आने वाले समय च इन्ने वड्डे कारज करने आ, इस करके यह हुण तो ही तैयारी कर रहा है, इन्हें हुण तो ही तैयारी आरंभ दित्ती है। क्योंकि जिन्ना महान कार्य करने होंदे आ वो बचपन तो ही तैयारी आरंभ कर देंदे आ, शुरू कर देंदे आ। जिवें गुरु अर्जुन देव पातशाह ने महान कार्य कीते ते बचपन च एडी वड्डी कृपा वरत गई, ते इदां ही गुरु तेग बहादुर महाराज ने महान कार्य कीते ते बड़ी वड्डी कृपा वरती है। इस करके कहते बचपन च भी करतार की कृपा सदका समाधि विच लीन रहिंदे आ, मालक की याद विच जुड़े रहते गुरु तेग बहादुर महाराज। ते कहते कर एक वक्त वो आया जदों इन्हां दे वड्डे भराता बाबा गुरदित्ता जी का ब्याह सीगा।
उस विआह की घटना नूं हरेक प्रचारक कोट करता है। कहते कन विआह सी बाबा गुरदित्ता जी का, सोहने कपड़े सारिਆਂ ਨੂੰ पवाए गए, क्योंकि पोशाकां गुरु हरगोबिंद पातशाह जी जिथे आप राजे महाराजियां तरह पोशाक पहनते सन, ते सच कह अपने पुत्रां नूं भी उदां दी पोशाक पहनाउंदे होण। सोहणे सूट तैयार किए गए, कपड़े पहनाए गए, बरात निकलती है। उत्थे एक घटना वापरती कि छोटा जिहा, क्योंकि उदों उम्र 4-5 साल की उम्र सी गुरु तेग बहादुर पातशाह, ते उत्थे तकदे कन एक छोटा जिहा बच्चा जिहड़ा नगन अवस्था च है, ठंड का दिन सी, सियाल सीगा, ते कहंदे ठरू ठरू करदा है। बरात वेख के कदी खुशी ना अगे आउंदा, पर अपना नगेज वेख के फिर पिछा हो जाता है। कहंदे कन ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के गुरु तेग बहादुर पातशाह जी अपनी पोशाक उतार के ਉਹਨੂੰ पहना ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ पहना ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਦੇ ਬਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਵਾਏ ਸਨ, ਸੱਚ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਡਰੈਸ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਡਰੈਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੱਜ 3-3, 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਉਧਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, पर इनू जो सिक्ख्या दी गई उस सिक्ख्या के मुताबिक चल रहा भी नहीं, इदा उधार चीज़ नहीं देनी। तो वेखो वो 4-5 साल की उम्र का बच्चा गुरु तेग बहादुर महाराज जी बचपन दे विच ते कहंदे कर अपनी ड्रैस का हरेक नूं पता भी नवीं लैके दित्ती, नवीं खरीद के दित्ती, सोहनी बना के दित्ती, कोई किसी नूं चीज़ नहीं दिंदा। पर कहंदे गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अपनी पोशाक ला के उहदा नगन ढकिया, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਕੇ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਬੇਟਾ एडा सोहना सूट बना के तैयार करके तेनू पहनाया सी, कित्थे ओ पोशाक? ते हाथ जोड़ के अपनी माता नूं क्या, मां छोटी जी उम्र का बच्चा, मेरी उम्र का बच्चा नंगा सी, मेरे तो उहदा नगेज वेखिया नहीं था, इस करके मैं अपनी पोशाक उतार के ते उस बच्चे नूं दे दी। ते तां गुरु मां ने ये बात कही सी, तेग बहादुर तू त्याग की मूर्त है। जिथों लगता कि गुरु तेग बहादुर महाराज नूं त्याग मल भी किया जाता सी, पर नाम शुरू तो तेग बहादुर से, क्योंकि त्याग बहुत सी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के अंदर। त्याग ही सी ते अपना परिवार का त्याग करके किसी की खातर अपना बलिदान दे दिता। इस करके बचपन ची एडा बड़ा त्याग कि अपनी पोशाक उतार के ते पुछया मां ने, ते क्या मां सतगुरां दी कृपा सदका सानू रब ने बहुत कुछ दिता है, ते मैनू ये भी पता है कि मेरे को होर भी सूट रहे, मैं वो पा लवांगा, पर वो नंगा सी बेचारा, ठंड च ठर रहा सी, उहदा तन ढकण वास्ते मैं अपनी पोशाक नूं दे आया। सो मात नानकी ने झिड़किया नहीं, सगों अपनी हिक न लाया भी ये परोपकारी पुत्र है। बचपन के अंदर कुछ अहम घटनावां घटियां जिन्हां ने बहुत असर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के उपर पाया। 1628 ईस्वी के अंदर मात गंगा जी प्रभु प्याना कर गए, जिहड़े दादी लगते हैं गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के, गुरु अर्जन देव महाराज जी के महल ने गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के माता जी ने मात गंगा जी कहते कन, मात गंगा जी दादा गुरुदेव, मात गंगा जी दादा गुरुदेव उन्हां दियां साखियां शहादत दियां सुनाते हुंदे सन अपने बच्चिया। क्योंकि मैं पहला जिक्र किया भी वेखो, पहला बच्चे दादे दादियां कोल पैंदे सन, सौंदे सन ते वो साखियां सुणाउंदे सन। अज नहीं अपने बच्चों को असीं दादा दादी को बहन भी देंगे, बहन भी नहीं देंगे भी ओल्ड एज ने, पुराने जमाने दीयां गल्लां करनगे, पुरानी गलबात करनगे, ते उन्हां नूं कोल भी नहीं बहन देंदे असीं।
पर उन्हां बजुर्गां दे कोल जिहड़े बच्चे बैठते रहे, सच है बच्चे अपने पुरखियां दीयां बातां सुनते और कहते मात गंगा दी गुरु अर्जन देव पातशाह जी की शहादत, गुरु अर्जन देव पातशाह जी के जीवन दीयां साखियां अपने इन्हां बच्चियां नूं सुणाउंदे रहे सन, जिन्हां दा असर बहुत सी। ते कहते 1628 वो चढ़ाई करके हजे 2-3 हफ्ते गुजरे सन डॉक्टर तारण सिंह के मुताबिक कि इन्हां दे बड़े भराता जिहड़े 2 साल वड्डे सन, क्योंकि बाबा अटल राय जी का जन्म 1619 ईस्वी का है। तो कहते उन्हें अपने बचपन के दोस्त मोहन नूं जिंदा कर दिता सी, उठ मेरी मिति दे, कल तू लई सी अज मेरी मिति दे, ते वो कहते सप लड़न करके मर गया सी। ते बाबा अटल राय जी ने उन्होंने जिंदा कर दिता सी। ते गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोबिंद पातशाह ने कहा सी भी तू कोताही कीती है कि रब की रजा नूं उल्ट कीता है, इस करके इहदी जगह ते तेनू अपने प्राण देने पैणगे। ते साचा बाबा अटल राय जी अपने प्राण दे गए सन, उस मोहन नूं जिंदा कर दिता सी, अपने प्राण दे दिते सन बाबा अटल राय जी। इस करके दूजी घटना गुजरती है, बाबा अटल राय जी चढ़ाई करते हैं। उन्हां तो बाद फिर 135 साल की उम्र संसार की धरती ते भोग के बाबा श्री चंद जी इस संसार की धरती तो चलाना करते हैं। बाबा श्री चंद ने गुरु हरगोबिंद पातशाह अगे बेनती की सी कि कृपा करो एक पुत्र मैनू दे दो। ते कहते हैं गुरु हरगोबिंद पातशाह ने अपना वड्डा सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी, वो बाबा श्री चंद नूं दे दिता सी उदासीन संप्रदा चलाउण वास्ते। बाबा गुरदित्ता जी उदासीन फिर संप्रदा चलाउंदे सन बाबा श्री चंद तो बाद। इस करके फिर कहते हैं उस तो बाद मार दमोदरी जो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के महल सन वो चलाना करते। ये 4-5 घटनावां ने धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के उपर गहरा असर पाया। इस करके गुरु तेग बहादुर महाराज हर वक्त करतार की इबादत विच, मालिक की याद विच, साहिब की याद विच जुड़े रहिंदे। बचपन तो ही कह लो कि छोटी उम्र के अंदर जदों बच्चे नूं रोटी खाण पीण का भी चंगी तरह पता नहीं हुंदा, उस अवस्था के अंदर भी गुरु तेग बहादुर महाराज करतार की बंदगी में जुड़े रहते सन, मालिक की याद में जुड़े रहते, करतार की याद में जुड़े रहते। बहुत घट बच्चे का अज के समय के अंदर जिन्होंने ये पता होगा भी रब का नाम भी लेना। आप जो बच्चे सिखाते हैं ना, तो पहले नंबर पर साढ़े घर गाने चलते होंगे आ, तो बच्चा वाहिगुरु कहण की बजाय गाना गा के सुनाता है। छोटी तोतली की उम्र जो शुरू करता ना बोलना, तो आप कहने फलाना गाना जोड़ा वो सुना, आप की कहने फलाना गाना सुना, तो बच्चा तोतली जबान तो उही बोलता जो उसके अंदर पाया जाता है। तो जे उस बच्चे के अंदर पाया जाए जपजी साहब, उस बच्चे के अंदर पाया जाए जाप साहब, सारे बच्चे नहीं गए, बड़े ऐसे बच्चे छोटे छोटे 4-4, 5-5, 6-6 साल के जिन्होंने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पूरी नॉलेज है, जानकारी पूरी कि किन्ने अंग खन, किन्ने राग खन, किन्नी बाणी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माता पिता ने उन्होंने बच्चों को सिखाया। जो असी बच्चों के अंदर पावांगे वो भी जबान पे आए, जो अंदर पा। यही कारण है कि साडे बच्चों के उपर वो कृपा नहीं जो गुरु साहबाना के सपुत्रां के अंदर सी। हुण वेखो ना, राम राय नूं कहा जाता, औरंगजेब कहंदा है कि करामातां करके विखा, ते कहंदे बहुत करामातां उत्थे कीतियां दरबार के अंदर, अलग अलग जिक्र करते इतिहासकार। कहते तक इन्नियां करामातां विखाइयां, औरंगजेब भी हैरान रह गया। पर सोचण वाली गल ये नहीं भी करामात की, सोचण वाली गल यह है भी 12 साल की उम्र में इन्ना ज्ञान कितों आ गया। 12 साल की उम्र है राम राय की, 12 साल की उम्र च इन्नियां करामातां औरंगजेब के दरबार में करनियां कोई छोटी गलबात नहीं सी। ये मतलब ये मगर तपस्या कितनी बड़ी हो गई, तपस्या सिमरन कितना होगा, बंदगी कितनी होगी, तां इन्ना कुछ प्राप्त किया। इस करके
गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बंदगी बहुत है, तपस्या बहुत है, तो इस करके सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी उपर करतार की इन्नी बख्शिश रहमत इन्हां घटनावां ने असर पाया। थोड़ा जिहा अंतरीवी तौर पर करतार विच डुबे रहे गुरु तेग बहादुर महाराज। ता करके गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बाबा गुरदित्ता जी के सुपुत्र गुरु हरराय पातशाह जी को गुरता गद्दी के उपर नवाज दिता सी। पर नाल ये भी कहा सी समा आएगा ते आउण वाले समय के अंदर ये गुरता गद्दी के वारिस बन गए गुरु तेग बहादुर महाराज। फिर समा गुजरिया ते एक समा वो आया जिदन गुरु हरकृष्ण पातशाह जी दिल्ली के अंदर ज्योति जोत समाए ते समाउण तो पहला एक बात कह गई सी गुरु बाबा बसै ग्राम बकाले ते उत्थे फिर गद्दियां ला के बड़े लोग आकर के तीर मलिए मीने आके बैठ गए कि असी भी गुरु का क्योंकि छोटी परिवार चो मिलनी सी गद्दी। ते कहते कन उत्थे मंजियां लग गईयां ते बड़े लोगों ने आकर के मंजी ला ली। उन्हां विचों फिर एक व्यापारी सी भाई मक्खण शाह लुबाना जिन्हें सतगुरां दी परख की लभ्या। वेखो गुरु की भी परख, क्योंकि तां ही लभे ना गुरु। कहते कन वो सारे जिहड़े देहधारी सन उन्हां अगे दो दो मोहरां रखियां ते सारे कहते तैनूं दुध मिले, पुत्र मिले, कारोबार वधे, आ होवे, क्योंकि देहधारी सन। ते कहते उन्हां जदों ये सारियां अगे रखियां समझ गया भी ये पखंडी ने, इन्हां च कोई गुरु नहीं है। जिहड़ी गल गुरु हरकृष्ण पातशाह ने कहा वो इन्हां उपर नहीं ढुकदी, ये सारे पखंडी ने जिहड़े मैनूं ये असीसां दे रहे ने, नहीं तो मैनूं कहंदे भी बाकी दियां मोहरां कित्थे। क्योंकि उसदा जहाज डुबिया सी ते उहनूं सुखियां सन भी 500 मोहर चढ़ावांगा आप जी के घर के अंदर। ते कहंदे पुछया कोई होर है, ते कहंदे एक होर है जिहड़ा थल्ले भूरे विच बैठा। भाव कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी के कोल गए, उन्हां अगे जाके दो मोहरां रखियां ते सुभाविक सतगुरां ने बाह फड़ के कहा सी मक्खण शाह लबाना कह के सतगुरां नूं 500 ते रखदा दो मोहरां, कह के 500 ते रखदा दो है। उस टाइम सतगुरां दे चरनां ते डंडौत वंदना की, नमस्कार की मक्खण शाह लबाने ने। ते कहंदे कन कोठे चढ़ के रोला पाया, उच्ची उच्ची क्या गुरु लादो रे। मक्खण शाह लबाने ने धन गुरु तेग बहादुर महाराज को प्रगट कर दिया। साहब सच्चे पातशाह जी फिर गुरता गद्दी ते बैठे। गुरता गद्दी ते बैठण तो शहादत तक का सब्र है, सतगुरु जी कृपा करनगे। फिर आपां किसी दिन विचार करांगे। आप गुरु संगत साहब सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बख्श योग बख्श लैना। साहब सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के प्रकाश पुरब दियां आप सर्व संगतां लख लख बधाइयां होण। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी कृपा करन पाएगे पूर्ण उपदेशां सिद्धांतां दे धारनी बनाउण। सतगुरां दे 59 शब्द हैं ते 57 श्लोक ने रब्बी बाणी दे। 59 शब्द ते 57 श्लोक हैं गुरु तेग बहादुर महाराज जी के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी के अंदर। सो सतगुरु जी कृपा करन 59 श्लोक 68 शब्दों की मैं विचार की सी, जिथे पहला ड्यूटी करता सा एक एक शब्द की। उदों भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश पुरब सी। ते जे सतगुरु कृपा करनगे आपां 57 श्लोकां की जिहड़ी है वो विचार करन दा यतन करांगे। आप गुरु रूप संगत साहिब सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बख्श योग बख्श लैना। अखीर फतेह दी संग करिए, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा।